Hello, my friends, welcome. So, in this class, we are going to see about the C++ programming language, and here we are going to refer the notes of tutorial point. And here in our C++ programming language, maybe you have heard in your BTech or MCA or MTech or BCS or whatever you have done. So, we are having a long syllabus in C++ language. So, as you can see that we are having these are the chapters which you can see on the screen. So to cover all the things, it will take a long time. So just for the examination, so for IT officer, maybe you want to give the examination of IBPS, maybe you can say SBI, or we can say SEBI, NABARD, NASL, OSL. So whatever the exam you are focusing, so if in the syllabus object oriented programming language is there, so then we are having this C++ programming language. Why? Because it is a object oriented programming language. So along with this, so we are going to refer the one website is known as W3 School. So we are going to refer this PDF of tutorial point. Then we are going to refer this PDF of a college of uh, Odisha. And then here we are having one website for our live practice. We will refer this. ठीक है. तो इन शॉर्ट मैं आपको ये चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आपको मे बी आपको सी प्लस प्लस आती होगी या मे बी आपको नहीं आती होगी. ठीक है. बट हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि एग्जाम में जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, जो भी क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस अपने सॉल्व हो जाने चाहिए. सो ऐसा नहीं है कि हम हर चीज यहाँ पे सीखने वाले हैं. अपना मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम इतना सीख ले कि लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें. ठीक है. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी सम थ्योरी, then we are going to see some MCQs, and then in the end of that we are going to see a mock test of C++ programming language. ठीक है. तो अगर आप if you are from EC student or you never heard of C++, do not worry, we are going to take from the scratch. So before moving ahead, first we have to understand about the object oriented programming language. So these are so many chapters we are going to refer. Okay, so let's start with our lecture one. So, as a programmer, you have heard about the machine language, assembly language, and high level language. So, maybe in school or maybe in first year of BTech, you have heard about this. So, I'm not going to explain what is machine level, assembly language, high level language. So, but for us, we are going to refer for the high level language. Okay. Now our C++ is a high level language. So और इसके जो एग्जांपल हैं, जैसे आपका बेसिक है, कोबाल है, सी सी प्लस प्लस है, जावा है, पास्कल है, पाइथन है. तो ये सब क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज. इन इट मीन्स विच अ ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड, एंड मशीन कोड तो विच कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड. ठीक है. सो आवर फोकस विल बी हाई लेवल लैंग्वेज. नाउ वी आर हैविंग here two type of high level language. First is procedure oriented programming language, which is known as POP. Second is object oriented programming language. So our focus will be on object oriented programming language. Okay. So I'm not going to explain this procedure. So just you can see in this we are, you can say accessibility is there. So and data hiding is not there. तो इन अवर ऑब्जेक्ट, व्हाट द ऑब्जेक्ट मीन्स, सो ऑब्जेक्ट मीन्स एनी रियल लाइफ एंटिटी. कोई भी आपकी रियल लाइफ एंटिटी है उसको हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं. एग्जांपल, लेट सपोज कैट इज देयर. जैसे आपने बोला कि सर देयर इज अ कैट, तो दिस इज अ ऑब्जेक्ट. अब जो आपका है ऑब्जेक्ट, उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. जैसे उसके पास ईयर है, उसके पास नोज हो सकता है, उसके पास नेल हो सकते हैं. तो ये सब क्या है? दिस आर द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है. अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या कहता है? ये फोकस करता है मॉडलाइजेशन पे. सो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन मॉड्यूल. ये बात करता है कि भैया आप हर चीज के मॉड्यूल बनाओ, सो दैट every module is a independent and we can easily communicate between two different modules. So let's suppose we are having object A, object B, or object C. So we can easily make
कम्युनिकेशन इन अवर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी चीजें होती है, कौन कौन से फीचर्स हैं। इट एम्फेसाइज ऑन डूइंग रेदर देन प्रोसीजर। सो ये कहता है कि काम करो। प्रोग्राम डिवाइडेड इनटू व्हाट दे आर नोन एज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सो इट मींस लेट सपोज आई वांट टू मेक अ वेबसाइट, मुझे एक वेबसाइट बनानी है। उसमें मैंने यहाँ पे जो काम है, जो आपका लॉगिन का काम है, वो एक अलग से मैंने बना लिया मॉड्यूल कि ये जो मॉड्यूल है इसमें सिर्फ लॉगिन का काम होगा। एक मैंने ये बना लिया मॉड्यूल फॉर द सर्च, ये जो मेरा मॉड्यूल है, जो भी एप्लीकेशन के अंदर कुछ भी मुझे ढूंढना है, दिस मॉड्यूल वर्क फॉर सर्च। मैंने यहाँ पे ये बना लिया मॉड्यूल फॉर अ कार्ट। ठीक है, तो वेन एवर एनीथिंग यू वांट टू ऐड इन टू कार्ट, और वी कैन से पेमेंट इंटीग्रेशन, तो ये मेरे मॉड्यूल हो गया पेमेंट। सो डिफरेंट मॉड्यूल इज हैविंग डिफरेंट फंक्शनैलिटी, एंड एवरी मॉड्यूल इज गोइंग टू कम्युनिकेट विद अनदर मॉड्यूल, एंड एवरी मॉड्यूल इज ए इंडिपेंडेंट मॉड्यूल। ठीक है, तो ये दिस इज द मेन थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। So the data structure are designed in such that they characterize the objects. Functions and operate on the data on object are tied together in the data structure. Data is hidden and cannot be accessed by external functions. ठीक है, ये सब चीजें हैं जो हम आगे देखेंगे। अब बेसिक और कैसे बिल्डिंग ब्लॉक क्या है आपका फॉर द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। First, we are having object, then we are having classes, then data abstraction and encapsulation, data inheritance, data polymorphism, then we are having data binding and message passing. तो आपका ये जो चार चीजें हैं, ये चार चीजें in interview, sometimes the examiner interviewer asks, what are the four pillars of object oriented programming language? So you need to remember these are the four pillars. ये क्या है आपके फोर पिलर है of object oriented programming language, object oriented programming language. So examiner may ask, what are the four pillars of object programming? Data abstraction, data encapsulation, data inheritance, and data polymorphism. So one, we are going to study this in depth with some examples also in later on. So this is just an introduction, so later on we are going to study. Then we are going to have some classes, data abstraction, inheritance. So let's see in here only in the theory. Now here we are going to do some practice. So यहाँ पे जैसा ऑप्शन आता है, तो here we will do some practice. So यहाँ पे मैंने हेलो गुड IT ऑफिसर मैंने यहाँ पे लिख दिया वर्ल्ड। ठीक है, एनीथिंग यू हैव रिटन, so it is going to take some argument and it is going to take some print. So here we are going to add some classes. So here this is a very short code, so we are going to write some long code also, but you don't need to learn the coding if you are from EC background. हमें बस इतना देखना है कि एग्जाम क्लियर हो जाए। our main objective that we are going to study which is important for exam in short period of time, because C++ is a very vast language, so we are not going to cover each and everything. We are going to cover only and only important part. सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये आता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। लेट्स सी डेटा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मींस use of abstraction are defined in size cost function। जैसे है abstraction refers to an act of representation essential feature without including the background details or explanation। ठीक है, इसका मैं शॉर्ट सा एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज यू आर डूइंग ए यूपीआई पेमेंट। ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो, आपका कोई दोस्त है वो यहाँ पे है, यू हैव मेड अ यूपीआई पेमेंट टू योर फ्रेंड। ठीक है, यू हैव ओपन फोन पे, गूगल पे, आपने इसको 100 रुपीज भेजे, इसने आपको एक्नॉलेजमेंट है, यस आई हैव रिसीव। सो दिस इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। यू हैव नो आइडिया व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन। भैया, how the money is going to transfer from my account and how the money is going to deposit into his account, we have no idea. So what is this is data abstraction. So we are showing only and only relevant point, we are not showing everything. So jo important hai, which is essential features, we are just showing it, and remaining we are hiding it, we are not showing. This is data abstraction. So later on we are going to study about the abstract method, abstract class, so ये सब चीजें देखेंगे। Now data encapsulation, so this is only
theory. Later on, we will do some practical. If you have any question, please let me know. Now, data encapsulation, wrapping of the data and function into a single unit, a class. जैसे you want to eat burger, ठीक है? Let's suppose you want to eat a burger, ठीक है? So in that, what we have a bread. Under the bread, we are going to have lots of things. Maybe potato, maybe paneer, cucumber, tomato, onion. So we can have a lot of things inside it. So what is this? So this is an data encapsulation. So wrapping of all the data function into a single unit. This unit is known as class. तो एक क्लास है, उस क्लास के अंदर क्या चीज होंगी, आपके मेथड्स होंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ क्लास यहाँ पे। encapsulation मेरा। So this is an example of class. So this is a class. So a class है employee की. So this is a class of employee. A employee is having a salary. So it is an integer. Okay, in that we are having two methods. First is void get, sorry, set salary. So and then we are having a get salary. So these are the two methods which are public in nature. तो ये क्या चीज है, ये आपका we can say encapsulation है। तो हर एक चीज इसके अंदर आ गई। सो दिस बंडल इज नोन एज अ रैप कह सकते हो, और यू कैन से बर्गर। so this is your burger. Okay, so what is this? This is my data encapsulation. So सब चीज एक के अंदर आ गई। Now we are having inheritance. From the name itself, it is inheriting. So one class is inheriting some property of its parent class. This is inheriting. So why we use inheriting? ये क्वेश्चन यहाँ से एमसीक्यू आपका आ सकता है, ठीक है? आपके एग्जामिनर क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछता हूँ कि सर एग्जाम में किस टाइप का एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है। एग्जामिनर is not going to ask you what is inheritance, what is data encapsulation. No, he will say, he will give you a statement and he will ask you which of the following is giving me this reusability. So let's suppose one question that examiner can frame, in my opinion, जैसे one question जैसे जैसे मैं लिखता हूँ, यहाँ इसने कर दिया ब्लैंक, डैश प्रोवाइड द आइडिया ऑफ द रीयूजेबिलिटी। ठीक है, अब ऑप्शन में ये आपको ए में बोल देगा कि डेटा इनकैप्सुलेशन, ऑप्शन बी में क्या देगा इनहेरिटेंस, ऑप्शन जो थ्री उसमें ही इज गोइंग टू राइट पॉलीमॉर्फिज्म। सो लाइक दिस ही इज गोइंग टू मेक समथिंग। नाउ यू नीड टू पिक क्या रीयूजेबिलिटी कहाँ यूज होता है, वेयर वी आर गोइंग टू यूज द रीयूजेबिलिटी। सो दिस इज हाउ ही इज गोइंग टू फ्रेम द क्वेश्चन। ठीक है, एग्जामिनर आपसे कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा दोस्त, he is going to ask in an indirect way. So that's why understanding the concept is very very vital and essential for the examination. Inheritance क्या है? आपके जो पापा के पास कोई चीज थी, उसको आपने इनहेरिट किया, आपने उसको और एक्सपेंड किया। आपका कोई बच्चा हुआ, उसने उस चीज को इनहेरिट किया, उसने उस चीज को और एक्सटेंड किया। तो दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो इससे क्या है, इसका हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, अपने सी प्लस प्लस में क्यों देख रहे हैं? फॉर द कोड रीयूजिबिलिटी, एक कोड का रीयूजिबिलिटी के लिए। लेट्स सी सम एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो वी आर हैविंग अ क्लास व्हीकल। ठीक है, एक व्हीकल क्लास है। सो यू कैन इमेजिन योर फादर मेक अ इंजन, उन्होंने इंजन बनाया, एंड यू फ्रॉम द इंजन यू हैव मेक अ व्हीकल। जैसे मैं एक और यहाँ पे हम ले लेते हैं, मान लो कि वी कैन से ग्रैंड पेरेंट कर लेते हैं ना, ग्रैंड पेरेंट। इन्होंने मान लो कुछ बनाया स्पेयर पार्ट, और वी कैन से व्हील बनाया इन्होंने। ठीक है, इन्होंने व्हील बनाया आपका। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं वॉइड, रन व्हील, रन व्हील, रन व्हील। ठीक है, सो योर ग्रैंड पेरेंट ने व्हाट दे हैव मेड, दे हैव मेड व्हील, एंड योर पेरेंट
from the wheel what they have made, from the wheel they have made a vehicle बनाया उन्होंने, ठीक है, from the wheel they have made a vehicle. Okay, and you, what you have done, you have made a car by using the inheritance from the vehicle. And what is you have made, you have made a car which is called Mustang, ठीक है, so you have made a Mustang. और आप यहाँ पे बोल सकते हो कि आपने एक बनाई टाटा पंच, यू हैव मेड अ कार, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ कंप्लीट इनहेरिटेंस, ठीक है। सो आपके जो ग्रैंड पेरेंट थे, दे हैव मेड अ व्हील, अभी सिर्फ आपको जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, सो लेटर ऑन वी विल सी हाउ टू राइट द कोड, व्हाट आर द सिंटैक्स, लेटर वी विल सी। नाउ व्हीकल, उसके बाद रन था, फिर इन्होंने बनाया मार्का एंड हॉन्क, लेट्स रन दिस कार, और इसी के आगे हम यहाँ पे एक और लगा देते हैं। माय कार डॉट रन व्हील। सो ये जो क्लास है, सिर्फ ये इस क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ये क्लास इसको एग्जीक्यूट करेगा और ये इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो यहां से ये देखो रन व्हील वाला जो था, रन व्हील, ये आउटपुट आ गया। इट मीन्स वी आर डूइंग सम इनहेरिटेंस। तो इसका क्या यूज है सर, क्यों यूज कर रहे हैं? जस्ट फॉर द रीयूजिबिलिटी ऑफ द कोड, दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ओके, नाउ वी आर हैविंग द polymorphism from the name itself. If you know little bit English, poly means many and morphism means forming, अलग अलग उसके form. So what this it means? It means that a single thing can have a multiple form. ठीक है, let's suppose we can say example of God. So in Hindu we can say ईश्वर कौन है, बोल सकते हैं राम है, हनुमान है, तो ये है। अब कोई क्रिश्चियन है, उनके लिए जो है जीसस गॉड है। अब कोई मुस्लिम है, उनके लिए गॉड कौन है, अल्लाह गॉड है। बट इन द एंड है कौन, भगवान, एक ही भगवान है, उसके रूप अलग अलग है। So same thing we can say, polymorphism means a thing can take multiple form. This is called polymorphism. ठीक है, so let's see this with some example. Now let's understand, there is a animal, एक animal है, so the animal is going to make some sound, so we have no idea what kind of animal it is, we just know it is an animal. Now there is a class pig which is going to use animal sound, so they see, ये जो method है, same method यहाँ पे लिखा है, same method लिखा हुआ है। So there is an animal, now this animal is going to use this method and it is going to override it, and there is a pig, so जो pig है वो क्या बोलेगा, वी करके बोलेगा। Now there is another animal, dog, so it is again going to use animal class, कौन सी animal class, तो यहाँ लिखी हुई है। So now it is using the same method, animal sound, animal sound, animal sound. So now this dog is going to say wow wow wow. Now we can have again a cat. So animal एक ही है, बट वो क्या कर रहा है, अलग अलग फॉर्म ले रहा है। वो समटाइम इट इज पिग, समटाइम डॉग, समटाइम कैट। तो व्हाट डज इट से, इट सेज दैट दिस इज अ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो उसमें हम कौन सी चीज यूज करते हैं, बेसिकली उसमें यूज करते हैं ओवरलोडिंग। तो हेयर वी आर गोइंग टू यूज द ओवरलोडिंग कंसेप्ट। ठीक है, so this is overloading concept which is going to be, see now maybe you understand, maybe you not understand, but later on we are going to solve some MCQs, we are going to solve some PYQ questions of different examination, then you are going to make some sense, then you are going to understand, yes हाँ चीजें क्लियर हो रही है हल्की हल्की। अब यहाँ से क्या थोड़ा सा आपका एडवांस आ जाता है, चीजें जो अपन अभी नहीं देखेंगे, अपने लिए हो सकता है कि थोड़ा सा ये एडवांस हो जाए, इसको रहने देते हैं। यहाँ पे आते हैं ट्यूटोरियल पॉइंट, ठीक है, ये भी अच्छी वेबसाइट है, दिस ऑल पीडीएफ आई विल शेयर, ठीक है, अदरवाइज दीज आर ऑल अवेलेबल ऑन इंटरनेट, इट इज फ्री सोर्स। ठीक है, अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है अपने लिए,
ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका आता है क्वेश्चन। ठीक है, नाउ लेट्स सी सम बेसिक थिंग देन वी विल मूव अहेड। Now, this is a C++ program. I will zoom here a little bit so that you can also see. ठीक है, तो ये क्या है? This is a C++ program. Okay. Now, what are the things over here? We are having this one line. This is include, and it is going to use some library. What library? IOStream. So there are so many libraries here. Let's suppose hundreds of libraries are there. So I'm using one library called IOStream. And here I'm using the namestate std. So इसके जितने भी variables होंगे उनको मैंने std reference दिया है. Now int main. So this is the starting point of your application. So in your application maybe you are having 100 functions, 100 methods. So how the compiler will know कि भैया मुझे शुरू कहाँ से करना? How the compiler is going to understand from where I am going to start? So there are hundreds of methods. So the compiler, when your compiler is going to run, it is going to look for the main method, where it is main method, and this is not going to return anything. अगर मैं यहाँ पे string कर देता हूँ तो इट विल गिव मी एरर. ये क्या करेगा? मेरे को एरर देगा. व्हाई? बिकॉज दिस इज प्री डिफाइंड सिंटेक्स. ये प्री डिफाइंड सिंटेक्स है कि जो आपका मेन मेथड रहेगा वो आपका यही रहेगा. नाउ दिस इज सी आउट. इट मींस टू प्रिंट एनीथिंग, टू प्रिंट एनीथिंग ऑन द कंसोल. दिस इज सी आउट. मैंने जैसे यहाँ पे लिख दिया आई लव इंडिया, आई लव इंडिया. ठीक है, सो इट मींस दिस इज यू कैन से अ थिंग विच इज गोइंग टू रन. अब इसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ एक ना, अच्छा क्वेश्चन है, आप बताना मेरे को. नाउ यू नीड टू टाइप हेयर. ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है, प्लीज राइट हेयर व्हाट विल बी द आउटपुट व्हेन आई हिट द रन बटन. जब मैं इसको रन क्लिक करूंगा व्हाट विल बी द आउटपुट? एनीवन हु वांट टू गिव द आंसर? व्हाट विल बी द आउटपुट व्हेन आई हिट द रन बटन? ए बी सी डी ई या रन टाइम एरर, और इट इज गोइंग टू शो ए बी सी डी ई वन, ए बी सी डी ई. जगदीश कह रहा है ए बी सी डी आएगा कंप्लीट. ए बी सी डी ई वन आएगा. सी यहाँ पे क्या होता है, आपके अलग अलग कंपाइलर अलग अलग काम करते हैं. इफ आई शो यू जीएस जावास्क्रिप्ट, मैं आपको दिखाता हूँ, तो जावास्क्रिप्ट का आउटपुट अलग आता है. लेट्स सपोज इफ आई शो यू जावास्क्रिप्ट, आई होप इट इज विजिबल टू यू. यहाँ पे जैसे मैंने इसको रन किया, तो इन जावास्क्रिप्ट में आंसर क्या आया? ए बी सी डी ई वन. जावास्क्रिप्ट में आंसर क्या है? ए बी सी डी ई वन. बट यहाँ पे अपने पास क्या है? सी प्लस प्लस है. सी प्लस प्लस ये कहता है कि अरे भैया ये क्या हो गया, इसको हमें समझ नहीं आया. इसका आंसर आएगा बी सी. सी प्लस प्लस कहता है इट मीन्स हाउ मेनी वर्ड्स यू वांट टू स्किप, how many words you want to skip. So it I say one, so one letter is going to be skipped. If I write here two, अगर मैंने two written किया, so it will say how many words you want to skip. So it is going to print C D E. यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है. Another question can be asked by examiner here. ठीक है, let's suppose if I write here 10. Now what will be the output here? Please give the output according to you. You can make mistake. We are learning here. I also make mistake, I also learn. Just give your guess according to you. What will be the output if I hit the run button? Zero आउटपुट आएगा, empty आएगा, रन टाइम आएगा, या यहाँ पे एक्सेप्शन दे देगा, एनीथिंग. एम्प्टी और एरर. ठीक है, एम्प्टी और एरर मतलब ए बी सी डी ई प्रिंट नहीं करेगा. इसने क्या क्या कुछ मतलब अजीब सा इसने कुछ वर्ड दे दिया. अब ये क्यों आया? ये क्या करता है, इतना स्किप करता है, इसके बाद क्या करता है, एम्प्टी स्ट्रिंग होती है उसमें से कुछ मेमोरी ब्लॉक में से कुछ ये उठा के ले आता है. तो इसको आप बोल सकते हो गार्बेज वैल्यू. इट इज शोइंग मी सम गार्बेज वैल्यू. ओके, इतना अपन को नहीं जाना, एग्जामिनर इतना नहीं पूछता. एग्जामिनर उसका मन हुआ तो कभी कभी ऐसा करके वो पूछ लेगा, इसका बताओ इसका आउटपुट क्या है. सो लाइक दिस ही विल आस्क दिस क्वेश्चन. ही इज नॉट गोइंग टू आस्क इन वेरी वेरी टफ. ठीक है,
ये एक कंसेप्ट था आपका, यहाँ से क्लियर हो गया। एक कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ बताया था, एक ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर के। ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड। अब ये एक तीसरा पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, वेरिएबल्स। ठीक है, मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा इंट ए इज इक्वल टू 10, और लेट्स सपोज आई वांट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए। इफ आई हिट द रन बटन, it is going to show a. If I write here apple, and if I write here apple, again it will show me apple. Now there are some words or keyword it accept, and there are some words or keyword it don't accept. वहां से examiner question पूछ सकता है वो। How the examiner is going to ask the question? He will give you long program. वो क्या करेगा, ऐसा आपको एक program दे देगा। He is going to give you one program like this, and in this program he is going to make some thing. So what are the things he is going to make? So let's suppose if I show you, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ना, yes, you can unmute and you can ask, buddy. वो जो आपने कोड लिखा है उसमें रिटर्न 0 लिखा है, हाँ हाँ। तो सर वो एंड में रिटर्न 0 क्यों नहीं कर रहा? मतलब अगर मतलब ये है कि रिटर्न मतलब होता है कि आप कुछ दे रहे हो, तो जब भी आप किसी को कुछ दे रहे हो तो आप कोई लेने वाला होना चाहिए उसके लिए। तो इट मीन्स समवन इज एक्सेप्टिंग अ वैल्यू। अब यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी प्रोग्राम होता है वो कुछ रिटर्न करता है, तो उसको कोई एक्सेप्ट करता है, जैसे कि फ्रेंड फंक्शन फंक्शन। लाइक मतलब अगर जैसे कि अभी अपने आगे जो रन करवा रहे वो स्लाइसिंग वाला आपने जो किया, उसमें उसमें उसने रिटर्न 0 लिखा था, बट वो फिर भी प्रिंट कर रहा था, तो वो वो प्रिंट, रिटर्न जैसे देखो, जैसे ये है वॉइड मेथड नहीं है, मतलब मैं क्लास देख रहा था जिसमें कुछ रिटर्न किया उसने, उससे पता लगेगा। तो ट्राई तो ठीक है, यहाँ पे एक मिल नहीं रहा क्वेश्चन, मैं ये बताता हूँ। सो जिसने ये लिखा है प्रोग्राम, जिसने लिखा है सी प्लस प्लस, जिसने लैंग्वेज लिखी है, सो उसने ये स्टार्ट किया है कि जब भी आपका प्रोग्राम रन करेगा तो वो क्या करेगा, इस मेथड को ढूंढेगा, ये मेथड कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें हमने रिटर्न 0 इसलिए लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, और ये जो इंट है ये इसका डेटा टाइप है। सो ये जो 0 है एक इंटीजर है, लाइक 0 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज एन इंटीजर। सो व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू इट इज गोइंग टू रिटर्न, इट इज गोइंग टू रिटर्न मी अ 0 वैल्यू। तो जिसने प्रोग्राम बनाया है उसी ने ऐसा ये सिंटेक्स लिखा है कि भैया ये चीज होगी, इसके अलावा आप कुछ लिखोगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे इसको स्ट्रिंग कर दूं, और यहाँ पे भी इसको मैं मान लो स्ट्रिंग कर दूं, मान लो इसको मैंने एप्पल एप्पल ही कर दिया, और इसको मेन की जगह मान लो मैंने कर दिया मेन की जगह, इसको मैंने कर दिया क्यू ई है। ठीक है, सब मेथड इज देयर। ठीक है, सो व्हेन आई रन इट, अब ये क्या करेगा, जो आपका कंपाइलर है वो उसको देखेगा कि यार मेन मेथड मेरे को मिला नहीं, तो इट विल गिव यू एन एरर कि यार ये जो मेथड है मुझे मिला नहीं। तो अब ये देखो, अनडिफाइंड रेफरेंस टू द मेन मेथड। तो जिसने कंपाइलर लिखा है उसने प्रोग्राम ही हिसाब से बनाया है कि कहाँ से आपकी एंट्री पॉइंट होगी। तो उसने मतलब एक कुछ होता है ना, हार्ड एंड फास्ट रूल होता है, तो वो चीज ये यहाँ पे कि मेन है, उसको मेन के बिना वो स्टार्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज है जिसने प्रोग्राम बनाया उसने लिख रखा है। अब जैसे इंक्लूड है आईओ स्ट्रीप, अब आप कहोगे सर इंक्लूड ही क्यों है, यहाँ पे इंक्लूड के आगे ये वर्ड क्यों नहीं लगा है? हो सकता है कि अगला ये भी लिख सकता था। मतलब मेरा ये मतलब था कि
ये रिटर्न 0 लिखा है तो अपने पता है लाइक कोई फंक्शन अगर रिटर्न करता है तो वही वैल्यू होनी चाहिए ना 0। हाँ, इसलिए मैं पूछ रहा था, बट ये तो प्रिंट कर रहा है अपने जो भी स्ट्रिंग डाल रहे हैं यहाँ से। नहीं, ये यहाँ से प्रिंट कर रहा है, ये अलग है, ये प्रिंट इसे प्रिंट कर रहा है। ये प्रिंट कर रहा है और फिर रिटर्न रन ही नहीं कर रहा। रिटर्न तो एंड कर रहा है ना इसको। देखो, ओके। यहाँ जो चीज लिखी है वो मुझे रिटर्न तो उसको देनी पड़ेगी ना। अगर कुछ रिटर्न नहीं होता अच्छा तो हम अच्छा वॉइड अच्छा। लिखते हैं। इफ आई डोंट वांट टू रिटर्न एनीथिंग देन आई राइट वॉइड। वॉइड ओके मीन्स ओके, आई एम। समझ गया सर, समझ गया। मतलब अगर वॉइड है तो वो खाली प्रिंट ही करेगा। हाँ, कुछ बट रिटर्न नहीं करेगा। अगर कोई इंट विंट लिया है तो अपने को रिटर्न करवाना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। समझ। ठीक है, सो मूव अहेड, सो वेयर आई वाज दिस इंट मेन इंट एप्पल। ठीक है, ये क्या हो गया, आई यूज्ड टू, ये भी क्या सिंटेक्स में बना रखा है। So here I was. So there are some variables which examiner is going to put in indirect way. Indirect way में हो सकता है, जैसे कि मान लो कि इसने एप्पल लिख दिया, एप्पल रन हो गया। अगर मैं यहाँ पे अंडरस्कोर एप्पल लगाता हूँ और मान लो यहाँ पे भी अंडरस्कोर एप्पल लगा दिया, अब ये एक वेरिएबल है, ठीक है, ये रन होगा नहीं होगा, बिल्कुल ये रन हो जाएगा। इट मीन्स ये वैल्यू क्या एक्सेप्टेबल है। इसने बोला कि यार नेम के बीच में हम अंडरस्कोर लगा सकते हैं, इसने बोला हाँ सर नेम के बीच में भी अंडरस्कोर लगा सकते हो। मैंने एक नया वेरिएबल बना दिया, 2p के बाद एक और अंडरस्कोर लगा दिया, ये रन करेगा, हाँ ये भी अपना जो प्रोग्राम एक्सेप्ट करेगा। इसने बोला नेम के साथ में क्या वर्ड्स लगा सकते हो, इंटीजर्स लगा सकता हूँ, इसने कहा हाँ लगा सकते हो। मैंने एप्पल 21 लिख दिया, 212 कर दिया, और यहाँ पे भी इसको मैं वही प्रिंट कर रहा हूँ, एप्पल 212, एप्पल 212 या 212। तो ये रन करेगा, यस इट विल रन। ठीक है, सो दीज आर द वैल्यू विच इज एक्सेप्टेबल। इसने बोला कि यार इसके अलावा जो चीजें हैं वो आपके रिजर्व्ड कीवर्ड में आते हैं, कौन कौन सा रन नहीं करेगा। जैसे कि कोई भी आपका वेरिएबल है, एनी वेरिएबल इज देयर विच इज गोइंग टू स्टार्ट विद अ नंबर, जैसे मैंने लिख दिया 212 एप्पल अंडरस्कोर एप्पल, तो दिस इज नॉट गोइंग टू रन। तो माई कंपाइलर इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस। क्यों? एक प्री डिफाइंड रूल है, देर इज अ सेट ऑफ रूल्स द कंपाइलर रन्स। ठीक है, इस वर्ल्ड में जो भी चीजें होती हैं एक सेट ऑफ रूल्स होता है। अगर आप उस रूल को ब्रेक करोगे तो चीजें नहीं चलेंगी। तो जिसने भी कंपाइलर बनाया है, हु इज गोइंग टू मेड द कंपाइलर, ही हैज राइट सम प्री डिफाइंड रूल्स कि इफ यू वांट टू डिक्लेयर एनी वेरिएबल सो देयर आर सम रूल्स यू शुड फॉलो। तो उसने बोला कि कोई भी वेरिएबल नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, नंबर लगाना है आप लास्ट में लगाओ, नंबर आपको लगाना है लास्ट में लगाओ, स्टार्टिंग में आप नहीं लगा सकते। आप ये ऐसा इसको रन कर सकते, इट इज गोइंग टू रन। आपने बीच में लगाना, मतलब फर्स्ट लेटर आपका होना चाहिए, मतलब फर्स्ट लेटर शुड नॉट बी ए नंबर। नाउ द एग्जामिनर, हाउ एग्जामिनर इज गोइंग टू आस्क क्वेश्चन, ही इज नॉट गोइंग टू आस्क दिस इजी पीजी क्वेश्चन, ही विल गिव यू दिस प्रोग्राम। आपको लगेगा सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, यहाँ जैसे इन टाइप पर लिखा है, वो क्या करेगा यहाँ पे लिख देगा 1 एप्पल। अब आपको लगेगा कि हाँ यार सही है, यू विल टिक अ राइट ऑप्शन। बट व्हेन यू लुक एट द क्वेश्चन, यहाँ पे सिंटेक्स एरर है। तो जब आप इसको रन करोगे तो ये आपको एरर दे देगा कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, सो दिस प्रोग्राम इज नॉट गोइंग टू रन, एरर आ जाएगा। सो दैट्स व्हाई लुक एट द ऑप्शंस वेरी वेरी केयरफुली। ऐसा नहीं कि लॉन्ग क्वेश्चन होगा, शॉर्ट क्वेश्चन होगा, बट सम ट्रिकीनेस विल बी देयर। ठीक है, सो कुछ वेरिएबल्स एक्सेप्ट करता है, अब कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड होते हैं जिसको आप यूज नहीं कर सकते। तो दीज आर द रिजर्व्ड कीवर्ड्स लाइक एएसएम, एल्स, न्यू, ऑपरेटर, थ्रो, ट्रू, पब्लिक, केस, कैच, ब्रेक, क्लास, रिटर्न, साइन, वॉइड, वॉलेटाइल, वाइल, स्विच, म्यूटेबल। ये कुछ वर्ड हैं जो यूज नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने वर्ड यूज किया रिटर्न, सो एप्पल मुझे अच्छा नहीं लग रहा, एप्पल की जगह आई वांट टू यूज सम वर्ड रिटर्न, रिटर्न यूज करना, आई डोंट लाइक एप्पल, आई वांट अ कीवर्ड रिटर्न। ओके, सो इट विल गिव यू एरर, व्हाई दिस इज अ रिजर्व्ड कीवर्ड। एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, इसको यूज नहीं कर सकते। जैसे रिजर्व कीवर्ड हो गया आपका, जैसे ले लेते हैं हम यूनियन ले लेते हैं यहाँ पे, मुझे ऐसा यूनियन रिटर्न अच्छा नहीं लग रहा, मैं यहाँ यूनियन लेता हूँ, यूनियन। तो यूनियन अगेन इट इज अ रिजर्व्ड कीवर्ड, इट मींस यू कैनॉट यूज इट, द कंपाइलर itself it is going to use it, you are not authorized to use as a variable।
तो यूनियन नहीं है, आपको सर यूनियन यूज करना है तो यूनियन अंडरस्कोर वन यूज कर लो ना आप। अगर यूनियन वर्ड से, इफ यू लाइक यूनियन वर्ड, you can use a union underscore one. It will work, no problem. Okay. So this is how the examiner can also ask a question to you. So these are the word you need to go at once. एक बार आप देख लोगे आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइन यहाँ से इंपॉर्टेंट है। C++ identifier use a name to identify a variable, function, class, module or any other user defined item. It identify start with a letter. इसने बोला कि कोई लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, A से Z और A to Z, ये दोनों होना चाहिए, और इट शुड स्टार्ट विथ अंडरस्कोर, देन यू कैन हैव एनीथिंग। और इसके अलावा कुछ यूज कर लिया तो मैं रन नहीं करूंगा। मान लो आपने कहा वन एप्पल, नहीं सर मैं तो यूज करूंगा, आई एम नॉट, आई विल यूज हैश, I want it, my variable is going to start with hash. So what this rule is saying, this rule is saying that you can start with anything with a alphabet from A to Z, or your variable can start with underscore. Other than this, I am not going to run it. Other than this, I am not going to run it. If you are going to use digits, if you are going to use special symbol, I will not run it. I will say, nobody, no, I don't like you. So it's not going to run. Okay. और इसमें कुछ है नहीं ऐसा इम्पोर्टेंट सा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लेट्स मूव अहेड नाउ, लेट्स स्पीड अप। ठीक है, अब हल्का हल्का स्पीड अप करते हैं। ठीक है, स्पीड अप के लिए यहाँ से अपन चलते हैं। बहुत अच्छी वेबसाइट है दिस, इफ यू वांट यू कैन रेफर इट आल्सो। दिस इज अ वेरी गुड वेबसाइट, आई यूजुअली लाइक दिस वेबसाइट। ओके, W3 स्कूल वेबसाइट नाम है, सिंटेक्स है। ओके, एक क्वेश्चन आ जाता है, इफ यू आर गोइंग टू गिव द एग्जामिनेशन ऑफ बैंक पीओ और बैंक क्लर्क, so sometime we are having, we can say, computer awareness in our examination. We are having a, we can say, word computer awareness. So when you are going to give the examination RRB SOIT, again we are having computer awareness, basic easy peasy question they ask. Sometime they ask who is the founder of this C++, so this is a name that you need to start, you need to remember sometime ना, जिन्होंने बनाया थोड़ा बहुत उनको याद कर लेना चाहिए। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। सी प्लस प्लस क्या है, ठीक है, हमने देख लिया ये सिंटैक्स होता है, ये रन हो गया। हमें इतना भी नहीं देखना, हमें बस जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिर्फ वही देखनी है। ठीक है, सिंटैक्स थिंग है, वी हैव गॉन विद द सिंटैक्स। देखो जैसे हमने यूज किया था नेम स्पेस एसटीडी, यू डोंट वांट टू यूज इट, इसने बोला कि सर ये जो वर्ड है इसको हटा सकते हो आप, बट इसको आप हटा दोगे तो अगर आप रन करोगे तो my company is not going to understand what is the cout means. Let him to understand this word, I need to use the std. You can use with std if you want, if you don't want to use std, then you can declare it on the top, अगर आप टॉप पे डिक्लेयर कर दोगे, otherwise it is going to run. Same thing is there. ड्रैग एंड ड्रॉप द मिसिंग ऑप्शन टू इंक्लूड द आईओस्ट्रीम। कौन सा चीज होता है, कीवर्ड क्या है, इंक्लूड है, इंक्लूड होगा तो ही आईओस्ट्रीम रन करेगा। ओके, स्टेटमेंट हमने देख लिया, स्टेटमेंट में क्या है ये है। अब सेमी कॉलन, बहुत बार देखा होगा, वन सेमी कॉलन इज मिसिंग। बहुत सारे मीम भी हैं, इफ यू हैव सीन सम मीम्स ऑफ प्रोग्रामर डेवलपर्स, सेमी कॉलन, so if the semicolon is missing from the word, so it is going to give you an exception। तो क्या करेगा, एक्सेप्शन दे देगा कि भैया आपका कोड रन नहीं करेगा। वाई, because it was accepted a semicolon, it was missing from your code, so it will give you an error। okay, यहाँ क्या आ जाएगा, सी आउट। अभी हम इजी इजी देख रहे हैं, सो कैन से स्टेप बाय स्टेप वी विल इंक्रीज द लेवल, सो इट इज नॉट लाइक दैट वी आर गोइंग टू सी समथिंग। जैसे ये है आपके काउंट वर्ड है, सो you know math, I also know math, so let's see some math।
तो 3 + 3 और यहाँ मैंने लिख दिया +3, तो व्हाट विल बी द आउटपुट? आउटपुट इज 9। ठीक है, सो सिंपल कैलकुलेशन इज देयर। नाउ इफ आई राइट हियर दिस एंड नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन? एक सेकंड, 2 3 4 5 कर देते हैं इसको। नाउ यस, नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन? 2 3 4 5। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो इट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सर आपने ऐसा क्यों लिखा, इसका क्या मतलब था? इसका एक ही मतलब था, जस्ट टू शो यू दैट वी आर हैविंग द BODMAS, BOD, BODMAS. So in math you have heard of this BODMAS. This is bracket open, division, multiplication, addition and subtraction. तो ये क्या करता है? बॉड मास को फॉलो करता है। सबसे पहले ये क्या देखेगा? देखा कि मल्टीप्लीकेशन इज हैविंग द हाई प्रायोरिटी। मल्टीप्लीकेशन में क्या है? हाई प्रायोरिटी है। तो सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कहीं पे कुछ और चीज है वो एग्जीक्यूट होगा। सो इट फॉलो द बॉड मास कंसेप्ट। in the you can say ninth class or 10th class, you have maybe heard of this method. So it means that C++ also follow the mathematical follow of bord mass. Okay, फिर हम आगे चीजें देखेंगे। वी आर गोइंग टू इंक्रीज द लेवल, सो इट इज नॉट लाइक दैट सिर्फ इजी सी चीजें देख रहे हैं, आगे हम ठीक ठाक की चीजें भी देखेंगे। ठीक है, नाउ sometime the examiner ask a very easy question, how you are going to place a line break. So line break आता है कैसे? इससे आपका लाइन ब्रेक आता है। जैसे कि मैंने कहा हेलो वर्ल्ड, आई एम लर्निंग C++ लैंग्वेज। मान लो इसके आगे मान लो मुझे लिखना है हेलो। So what does it mean say? It means that this is a line break. So now you need to print the value in the next. तो ये देखो आपका हेलो किस में आ गया? अलग में आ गया। जैसे कि मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, इफ आई रिमूव दिस, so it is going to print me a single line. So everything is going to print in a single line. So if you want to enter, it is you need to enter here. ठीक है, तो अपने पास आ गया एक क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यू, इजी एमसीक्यू क्वेश्चन है। इफ यू हर्ड ऑफ C++ देन यू कैन आल्सो, व्हिच कैरेक्टर कैन बी यूज्ड टू इंसर्ट अ न्यू लाइन इन योर आउटपुट? यस, दिस ऑप्शन इज गोइंग टू /n। ये याद करना पड़ेगा। /n ही क्यों है? आई हैव नो आइडिया। सो दिस थिंग यू नीड टू रिमेंबर, ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा दोस्त, है ना? So now we are having the C++ comments. Sometime the examiner asks how we can going to insert some comments in C++. So we are having so many programming language. Now we are going to focus only on C++, how we are going to insert the command. For the single line comment आपका ये यूज होता है single line comment के लिए, 2 बैकस्लैश याद करना पड़ेगा, 2 बैकस्लैश फॉर द सिंगल लाइन कमेंट। जैसे यहाँ हमने एंटर किया, तो 2 बैकस्लैश रिप्रेजेंट अ सिंगल लाइन कमेंट। नाउ वी आर हैविंग द मल्टी लाइन comment also. So this is my multi-line comment. Now अब सर इससे एग्जाम ने कैसा क्वेश्चन पूछेगा? ही इज गोइंग टू आस्क व्हिच सिंबल इज गोइंग टू यूज एज ए मल्टी-लाइन कमेंट। जैसे यहाँ पे एमसीक्यू देख लोगे, यस, तो यहाँ पे आ गया दिस इज कमेंट। तो हाउ यू आर गोइंग टू एंटर सिंगल लाइन कमेंट? सिंगल लाइन कमेंट के लिए ये है। मल्टी लाइन कमेंट होता है तो आपका ये होता है। तो दिस थिंग यू नीड टू रिमेंबर, आपको याद करना पड़ेगा कि मल्टी लाइन जो है कमेंट वो कैसे स्टार्ट होता है, कैसे एंड होता है। समटाइम द कैन से एग्जामिनर कैन आस्क यू वेरी बेसिक क्वेश्चन आल्सो। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट। वेरिएबल्स थे, वेरिएबल्स अपन ने देख लिए। ठीक है, नाउ सम वेरिएबल्स आर देयर, इंटीजर, डबल, कैर, स्ट्रिंग, बूलियन। वी आर हैविंग सम वेरिएबल्स। So maybe any programming language, so in every programming language we are having some variables in double, char, string, boolean. ठीक है, तो इनके क्या कुछ वैल्यूज होती हैं, जैसे कि
So these are the range. Sometimes the examiner also asks the range of the variable. Easy क्वेश्चन में आ सकता है कि भैया चलो मुझे रेंज बता दो इन वैल्यूज की. So this are the range, you need to remember it. थोड़ा बहुत आपको याद करना पड़ेगा. What is the range of char? What is the range of unsigned char? What is the range of signed char? इससे एग्जामिनर एमसीक्यू पूछ लेता है. जो आपका गेट का एग्जामिनेशन होता है, आपने कभी गेट का एग्जामिनेशन दिया हो, गेट सीएससी गेट का एग्जाम होता है, तो सीएससी का उसमें आता है क्या, लूप के आ जाते हैं क्वेश्चन, या कभी आपके वाइल का क्वेश्चन आ जाता है, इफ एल्स ब्लॉक आ जाता है समटाइम. तो उसमें रहता क्या है कि यूजुअली द सी प्लस गेट पे क्वेश्चन में ऐसा देखा है, उनको कैर वर्ड बहुत अच्छा लगता है. सो दे आर गोइंग टू यूज सम कैर और अनसाइंड और साइंड कैर. फिर वो उससे क्वेश्चन ही ऐसा आता है कि क्या इसका आउटपुट आएगा. So if you know the range, when we are going to solve some medium level question and when we are going to solve some high level of question, you are going to understand, yes, if this is the range, these are the values it can show you. ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा. यूजुअली एग्जामिनर को जो अच्छा लगता है, जो इंपॉर्टेंट है, मैं वही बता रहा हूँ. जस्ट याद करने का तो इतना सब याद नहीं करना आपको, नहीं पूछता एग्जामिनर इनका. बट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, साइंड अनसाइंड कैर. साइंड और अनसाइंड जो कैर है उसको याद करना पड़ेगा. जो अनसाइंड इट मीन्स जीरो से स्टार्ट होगा, 0 से 255. जो साइंड इट मीन्स it is having a sign, whether it's having a plus sign or minus sign, imaginary sign you can have in this numbers. Sometimes he also asks the range, कितना वो space लेगा आपका in memory, how much it is going to take some space. यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है. So int is going to take 4 byte, sign carry is going to take 1 byte, short int is going to take 2 byte, and float is going to take 4 byte, double is going to take 8 byte. ठीक है. So like this, examiner can also ask a question. जैसे कि यहाँ पे इसने वैल्यू दी है. If we print this value over here, so it is going to show me the size. What is the size of that variable? So for the char 1, int char, short int 2, long int 8, float 4, double 8, vchar 4. वी आर हैविंग सम boolean also. boolean में क्या होगा, ट्रू और फॉल्स होता है. सो व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ boolean? द डिफॉल्ट वैल्यू boolean इज फॉल्स. एग्जामिनर पूछ लेता है डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, फॉल्स boolean है. ठीक है. ये वेरिएबल्स अपने, जैसे इंट है, इंट में हम लिखेंगे कैसे, 5 लिख दिया. फ्लोट में लिखेंगे कैसे, 5.99 है. कैर है, क्या प्रिंट करेगा, डी प्रिंट कर देगा. स्ट्रिंग है, माई टेक्स्ट है, हेलो है, बूलियन है, ट्रू हो जाएगा. सो बट एग्जामिनर यूजुअली प्ले विद द कैरेक्टर. मैं फिर से कह रहा हूँ, व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व सम हाई क्वेश्चंस, कैर पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. गेट का एग्जाम हो, यूजीसी नेट का हो या बीपीएस का हो, एग्जामिनर लाइक टू प्ले विद द कैर. आप एक ही लाइन के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स भी आप डिक्लेयर कर सकते हो. इन अ सिंगल लाइन यू कैन डिक्लेयर मल्टीपल वेरिएबल ऑल्सो, इट इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट एनीथिंग. ठीक है. इफ यू वांट, सर नहीं सर मुझे एक ही लाइन में मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर करने, सो यू कैन आल्सो डिक्लेयर मल्टीपल वेरिएबल एक्स वाई जेड एंड यू कैन आल्सो प्रिंट. एंड यू, इफ यू वांट, यू कैन आल्सो असाइन अ सिंगल वैल्यू. मुझे मन कर रहा है कि सर मैं सिंगल वैल्यू असाइन करूं एक्स वाई जेड, तो आई कैन असाइन अ सिंगल वैल्यू एंड इट इज गोइंग टू प्रिंट ऑल द सेम थिंग. तो ये क्या करेगा, सब कुछ सेम ही प्रिंट हो जाएगा. सो आई डोंट नीड टू वरी. तो यहाँ पे मुझे वरी करने की आवश्यकता नहीं. सो व्हेन आई एम गोइंग टू प्रिंट, it is going to give me 50 plus 50 plus 50 150. और आउटपुट इज 150. तो ये कह रहा है कि आप सिंगल वेरिएबल से भी आप काम कर सकते हो अपना. ना अब क्या कह रहा है ये आपका,
C++ is a case sensitive language. एक क्वेश्चन ये मैं आंसर किया, सी प्लस प्लस क्या है? सी प्लस प्लस है केस सेंसिटिव लैंग्वेज। इट मीन्स दैट सर सी प्लस प्लस केस सेंसिटिव है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब निकलता है कि दोस्त मैंने यहाँ पे लिखा इंट एप्पल इज इक्वल टू 10। इसको मैं प्रिंट करूँ, आप बोलोगे सर ये भी एप्पल है, ये भी एप्पल है, यहाँ पे आपने ई को वो कर दिया, या ई को ए को आपने वो कर दिया, कैपिटल कर दिया। रन करेगा? नहीं करेगा। इसके लिए ये दो अलग अलग चीजें हैं। इसके लिए क्या है? दो अलग अलग चीजें हैं। जो वापस यहाँ लिखना होगा यार। देखो ये क्या है? कैर है। इसमें क्या 97 मैंने लिखा तो ये ए आ गया। सो आपको इनकी रेंज भी याद करनी पड़ेगी। मैं बता देता हूँ। स्मॉल ए है, उसको हम क्या कहते हैं? 97। स्मॉल बी है, स्मॉल बी है, उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? स्मॉल बी को हम बोलेंगे 98। सी है, इसको हम क्या बोलेंगे? 99। ठीक है। डी है, इसको हम क्या बोलेंगे? 100। तो ऐसे आपका स्काई वैल्यू कहते हैं, इनको स्काई वैल्यू कहते हैं। कैपिटल ए है तो इसको क्या कहते हैं? 65। कैपिटल बी है तो इसको क्या कहेंगे? 66। कैपिटल सी है तो इसको क्या कहेंगे? 67। तो ये वर्ड्स हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। एग्जामिनर लाइक टू प्ले विद दिस वर्ड्स, विद दिस स्काई वैल्यू। इन लॉट ऑफ क्वेश्चन एग्जामिनर पे इज गोइंग टू प्ले विद दिस। इसको एग्जामिनर को बहुत अच्छे लगते हैं ये सब चीजें। सो वो चीजें याद करेगी, आपको याद करना पड़ेगा। अब ये क्यों है मुझे नहीं पता। जिसने रूल बनाया था, whoever made the rules, he only know that, but this thing you have to remember, इनको कहते हैं sky value. These things are known as the sky value. Sky value of a, sky value of small a or capital A are the different. So I have written a 97. So 97 is the sky value of a. So I have written over a char. So when I'm going to print the sky value, which is going to assign it, it is going to print the 97. So in the output only, if you can see, the output is small a. ठीक है। तो C++ is a case sensitive. इसने कहा names cannot contain a white space or special character also. It what does it means? इसका क्या मतलब? इसने बोला कि आप कोई वेरिएबल बना रहे हो, उसके बीच में स्पेस नहीं रख सकते। सो दिस इज नॉट अलाउड। तो व्हेन यू आर गोइंग टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, उसके बीच में स्पेस इज नॉट टेक यू आर गोइंग टू पुट। सो एक्सेप्शन दे देगा। और ऐसा भी नहीं है कि वेरिएबल के बीच में वो स्पेशल सिंबल लगा दिया, जैसे आपने हैश लगा दिया। तो ये कह रहा है कि नहीं नहीं, सी प्लस प्लस इसको भी नहीं लेगा। सी प्लस प्लस नहीं है, ये क्या है? स्पेशल सिंबल्स आर नॉट अलाउड। तो ये क्या करेगा? एरर दे देगा। सो दीज आर सम रूल्स एंड एग्जामिनर कैन ऑल्सो आस्क क्वेश्चन फ्रॉम। एंड वी आर हैविंग द रिजर्व्ड वर्ड जो हमने देखे थे, उनसे भी एग्जाम वो रिजर्व वर्ड आल्सो यू आर नॉट गोइंग टू यूज इट। तो जिसमें क्वेश्चन है विच इज नॉट अ लीगल वेरिएबल नेम। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? वेरी इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ए बी सी डी। आपके अनुसार क्या आंसर है इसका? ए बी सी डी। वेरी इजी क्वेश्चन है, ए बी सी डी बी। यस फ्रेंड्स, वेरी गुड, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेरी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर हैविंग सम कांस्टेंट। So why we use constant unchangeable read-only value? So any real life example we can say some URL is there. Let's suppose I have a such specific IP address or specific username or some specific URL of any specific website. I don't want changed by my program. मैंने कह दिया कि मेरा प्रोग्राम उस चीज को वैल्यू को चेंज ना करे। लेट सपोज आई एम हैविंग द यूआरएल ऑफ instagram.com, www.instagram.com or facebook.com or anything. So I want that nobody can change the URL. So I'm going to define in a URL or in a const word. So once the const is being written, so nobody can change it. So it is only unchangeable. So when you having some desired thing is there, so you are going to write this on thing in the constant value. So it means not no one is going to change it.
जैसे ये है तो यहाँ क्या आएगा, पहले इंट है, नहीं ये आपका कांस्टेंट इंट है, कांस्टेंट एंड इंट, कांस्टेंट आगे लग जाएगा, उसके आगे क्या है, इंटीजर है। तो रियल लाइफ एग्जांपल जैसे देखना, स्टूडेंट है, स्टूडेंट की आईडी हमने 15 लिख दी, एज लिख दिया, फ्लोट में मार्क्स लिख दिया, इन क्या रख दिया। नाउ आई एम गोइंग टू प्रिंट दिस वैल्यू, सो ये सब चीजें हम प्रिंट करेंगे, सो इट विल गोइंग टू शो मी द डेटा लाइक दिस। Let's suppose we are having a very basic thing here. Two integer we are having 4 and 6, and let's suppose the value is going to stored in a, you can say, integer, and we are going to print the value. Okay, now let's see something over here. Just when I agree to let's run this program. ठीक है, इस प्रोग्राम को अपन रन करते हैं। हमने कह दिया लेंथ इतना है, ये है। अब इसने यहाँ क्या कर दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल या कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके रेंज की बाहर चला गया, इसके रेंज के बाहर चले गया बेचारे के। तो इसकी गलती नहीं है, अपनी गलती है, अपन इसको रेंज के आगे से लेके चले गए। ठीक है, नाउ वी कैन ऑल्सो टेक सम इनपुट एंड वी कैन ऑल्सो टेक सम आउटपुट, बट ये एग्जामिनर, मतलब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, बट दिखा देता है, जैसे 4 इनपुट दिया और नंबर इज 4। ठीक है, एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता, बट सी प्लस प्लस देख रहे हो, थोड़ा सा देख लो। सीन मतलब होता है टू टेक एनीथिंग एज ए input from the user. If you want to take any input from the user, so we can use the word keyword see in, and to show we use see out. ठीक है, so we are having some, we can say, easy sample. Let's suppose we want to make a specific calculator who just want to add some two numbers. So we will take some input and we are going to make some output. So we are having here int x and y, we are having sum. So see out, it means type of a number, c in x, then again number type. So we are taking the sum and we are going to print the sum. If you don't want to do this, if you want to save some line of code, you can remove here, and you can also like this also. So like this also you can do this. Okay, so enter any number, मैंने लिख दिया 12, enter any number है, मैंने लिख दिया 15, 16, so it will give me the sum. The sum is 28. So like this we can make a calculator also by using the C++ language. Okay, so let's see some more thing, then we are going to end it. ठीक है, उसके बाद अपना एक जो है सेशन एंड कर देंगे। ठीक है, जस्ट few more minutes we will run, and after that we will end the first session. So again this thing, integer, float, double, क्या इनका लिखने का जो वे है वो याद कर लेना, एग्जामिनर पूछ लेता है बहुत बार। अगेन रेंज इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर कभी कभी रेंज पूछ लेता है। जैसे है कैर, तो एसकाई वैल्यू मैंने कहा था आपको इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर कैन ऑल्सो आस्क फ्रॉम द एसकाई वैल्यू।
Now we are having some scientific numbers also, so we can assign some scientific values also, but examiner don't ask question from it. Examiner उससे होता है क्या, क्वेश्चन नहीं पूछता. E means how many zeros you want to add. So E3 means 30. So in float I want to add 30. So मैंने यहाँ पे 30 ऐड कर दिया. Here in D1 we are having 12 and 40. ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया E5. It means I want to add 50. So sometime the examiner can all but don't use it. So ऐसा ही करके बना दिया इन्होंने, बट एग्जामिनर ये चीजें नहीं आती. ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन में ये नहीं आता है, जहां तक मैंने देखा है. जो साइंटिफिक है, you don't ask it. Now the thing which is unique, maybe you don't know, maybe you know, bool. So bool is going to have some value as a true and false. So when I'm going to print the C out and the value, let's suppose A and let's suppose B and let's suppose A and B. This line means next line. Line mean क्या next line है. तो अब A को जब मैंने प्रिंट यहाँ पे A लिखा, so यहाँ आउटपुट में क्या है 1 और 0. So this another way you can remember boolean means true or false, but my output is going to take the value as 0 and 1. So how it is happening, it is happening why, because our machine जो अपना CPU है, वो क्या, what he understand, what he think that the world is in 0 and 1. So he think that the complete world it is in 0 and 1. So the boolean is, we can say, a variable which is having true and false. So true means it is 0, 1. What is the meaning of true? It is 1. And what is the meaning of false? The meaning of false is 0. तो जो true है it represent 1 and false it represent as 0. So the CPU say that the world is in 0 and 1. So when we are going to write the bool a true, it means it is going to print the value as a 1. When we are having the bool as a false, it is going to print the value as a 0. So 0 and 1, 0 and 1. This is the, you can say, value which is going to print as a output. Now we are having a character also, in that we are having some values we want to print here. These are the values that I have shown you here. So A is equal to 65, B is equal to 66, C is equal to 67. Or let's suppose C is equal to another 16, 97, 97. So here we are having ABC. So this means this is a ASCII value. This is the ASCII value of A, ASCII value of B, ASCII value of capital A, ASCII value of A, ASCII value of B, and ASCII value of small a. ठीक है, तो दिस इज ASCII वैल्यू दैट यू हैव टू रिमेम्बर. ठीक है, तो जो स्मॉल वाला ए है वो 65 से आ जाएगा, और जो आपका कैपिटल वाला है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा. स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग्स में यू वांट टू ऐड समथिंग, यू वांट टू प्रिंट, यू कैन डू दिस आल्सो. जैसे मैंने यहाँ पे, अब स्ट्रिंग में क्या है, स्ट्रिंग को जब आपको यूज करना है आपको ये हेडर यूज करना पड़ेगा, बट एग्जामिनर डोंट आस्क दिस क्वेश्चन. If I don't remove, you can say use this header, it is sometimes it don't work, sometimes it don't work, but here we have to use the header. बोलते हैं header use कर लो, तो उसमें होता है क्या है कि it is going to run execute. Sometimes it don't work, so we have to use the string library. Now auto. So auto keyword automatically detect the type of the variable based on the value assigned. So this is the beauty of C++. What is the beauty? The auto keyword. Auto keyword क्या करता है, एग्जामिनर इससे क्वेश्चन आ सकता है. दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज अ डिफरेंट थिंग, ये डिफरेंट है जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है. व्हाट इज ऑटो? ऑटो क्या है? ऑटो एक कीवर्ड है विच ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कौन सा आपका डेटा टाइप है. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ऑटो,
auto x is equal to 5. So it automatically detect what is the, I can say, the data type you have assigned 5. So it will show you 5. If you assign 5.55, again it is going to work. ऐसा नहीं है कि ये वर्क नहीं करेगा, ऑटो इज गोइंग टू टेक दिस, तो इट इज गोइंग टू वर्क. अगर मैंने यहाँ पे इंट लिख दिया, मान लो कि मैंने बोल दिया सर ऑटो नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे इंट लिख दिया, इंट x इक्वल टू 5.55. ठीक है, अब इसने फिर इंटीजर है, अब आपको पता है इंटीजर में कि होल वैल्यू आती है. In the integer we are going to have the whole value 1 2 3 4 5 6 7. So we don't have decimal values in the integer. In integer we don't have the decimal values. So that's why we can use the auto when you not sure what to write, so you can use the auto. Okay, if you're not sure then you can play here like this, these are the numbers, you can also add the auto here. ठीक है, ये हो गया. और अपना लास्ट आते हैं अपना डेटा टाइप. तो जैसे इंट है, डबल है, करेंसी है, मतलब द थिंग्स दैट वी हैव सीन. यहाँ पे अपना ये क्लास एंड होता है. दीज आर द बेसिक थिंग्स. सो इंट है, वेरिएबल्स बना दिए, उसको वैल्यूज को प्रिंट कर दिया, दैट्स इट, नथिंग एल्स. वेरी बेसिक है. So here we are going to end our, can say, this class. In the next class we are going to continue. So we have started from the basic, we have seen the important part, and from where the examiner can also ask the question. So in the next class we will slightly we will see the new topics, and slowly we are going to increase the level, and then we are going to focus on the MCQ. Then we will take the mock test also. The MCQs and most mock tests are very important, very vital from the exam point of view. But just solving the MCQ, just solving the mock test without knowing the concept, without knowing the theory, it is not, it is just a waste of time. So that's why theory is very important. ठीक है, इसी के साथ दोस्तों, थैंक यू.